Good morning, student. 12 Chapter 2 Kings, Farmers and Towns. Topic 3 An Early Empire. Now we start. Topic 3 The Early Empire. So, the growth of Magad culminated in the emergence of the Mauryan Empire. Chandragupta Maurya, who founded the empire, Christ 321 BC. Finding out about the Mauryas. Historians have used a variety of sources to reconstruct the history of the Mauryan Empire. These include archaeological finds, especially sculpture. Another source that is often used in Arthashastra, parts of which were probably composed by Kautilya or Chanakya, traditionally believed to be the minister of Chandragupta, administering the empire. There were five major political centers in the empire. That is the first center of the capital Patliputra, the second the provincial center of Takshila, and the third Ujjaini, and the fourth Tosli, and the five Swarnagiri. Next, it is likely that the administrative control was strongest in the area around the capital and the provincial center. Next point, communications along both land and riverine routes was vital for the existence of the empire. And the last point in this topic, army was an important means for ensuring the protection. Megasthenes mentions a committee with 6 subcommittees for coordinating military activities. Topic 4 New notions of kingship, chiefs and kings in the south. The new kingdom that emerged in the Deccan and further south, including the chiefdoms of the Cholas, Cheras, and Pandyas. In Tamilkam, the name of the ancient Tamil country. Many chiefs and kings, including the Satavahanas, who ruled over parts of western and the central India. Christ 2nd century BC and 2nd century CE. So, the Shaks, a people of Central Asian origin, who established kingdom in the northwestern and western parts of subcontinent, derived revenues from long distance trade. Next, in detail in box matter, chiefs and chiefdoms. A chief is a powerful man whose position may or may not be hereditary. He receives gifts from his subordinates, unlike king who usually collect taxes and often distribute these amongst his supporters. Divine kings. Kings often try to identify themselves with a variety of deities. Deities, that means Devi Devta, in
order to claim high status. This strategy is exemplified by the Kushan, Christ 1st century BC and 1st century CE, who ruled over a vast kingdom extending from Central Asia to Northwest India. Koshal's status of Kushan rulers have been found installed in a shrine at Mat near Mathura at present in Uttar Pradesh. By the 4th century, there is evidence of larger states, including the Gupta Empire. Many of these depended on Samantaj, men who maintained themselves through local resources, including control over land. तो हम लोग अभी इस दो टॉपिक को डिस्कशन करने का काम किया है, अभी टॉपिक 3 और टॉपिक 4। अब हम इस टॉपिक को यह एक हिंदी के रूप में भी आपको हम कंसेप्ट क्लियर कर दें कि हमने जिस टॉपिक 3 और 4 को डिफाइन किया है वह टॉपिक 3 है अर्ली एम्पायर, यानी जो आरंभिक साम्राज्य की डिस्कशन है इस टॉपिक में, उस डिस्कशन से संबंधित बातों की चर्चा हम करें तो यह जानना बहुत ज़रूरी है कि मगध के विकास मौर्य साम्राज्य के उदय से हुआ है। यानी मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का जो उदय है, यह उदय मौर्य साम्राज्य के संस्थापक लगभग 321 ईसा पूर्व का शासन, यह शासन कहाँ तक फैला था, किस मतलब देश से किस देश तक या किस प्रांत से किस प्रांत तक स्प्रेड था, तो उसमें कहता है कि वेस्टर्न साइट्स में अफ़गानिस्तान से बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। और ये भी जानना ज़रूरी है कि यह बलूचिस्तान तक फैलने का मतलब है कि इस मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये उनके पौत्र अशोक ने उन्हें आरंभिक भारत का सबसे फेमस रूलर के रूप में जाना जाता था। यानी हम कह दें कि यही चीज़ कलिंग जो आधुनिक उड़ीसा के क्षेत्र में माने जाते हैं, आधुनिक उड़ीसा में है, उस पर विजय प्राप्त करने का बहुत बड़ा योगदान है। यानी यही कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। अब हम बात करते हैं, इसमें हम पढ़ाए थे फाइंडिंग आउट अबाउट द मौर्याज। मौर्याज के बारे में हम क्या जानते हैं, मौर्य वंश के बारे में क्या जानकारी है, इस जानकारी से संबंधित हम बात को आपको बताएं कि मौर्य साम्राज्य का इतिहास की जो रचना करने का काम किया गया, हालांकि इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों के माध्यम से इस चीज़ को जानने का प्रयास किया। हालांकि जितने भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं उसमें वह मुख्य रूप से शामिल किया गया, जिसमें शामिल करने में जो मूर्ति कला है यह सबसे इम्पोर्टेंट है। यानी इम्पोर्टेंट एविडेंस के रूप में माना जाता है मुख्य रूप से, स्पेशली इस चीज़ को फाइंड स्पेशली इन स्टैच्यू। फिर उसके बाद हम बात करें कि इसमें एक और सोर्स प्राप्त हुए हैं, जो सोर्स का प्रयोग प्रायः अर्थशास्त्र, यानी हम कह सकते हैं कि वह अर्थशास्त्र है जो सबसे बड़ा सोर्स के रूप में प्राप्त हुआ। और इसके कुछ भागों की रचना कौटिल्य या चाणक्य ने की थी। तो जो चंद्रगुप्त के मंत्री थे, यानी इसकी जो रचना किया वो चंद्रगुप्त के कौन थे, मंत्री थे। फिर इस बात की भी जानकारी प्राप्त हुआ है कि जो इस मंत्री के रूप में थे वह उसकी भूमिका और भी बहुत सारे चीज़ों में कहा जाता है कि मौर्य शासकों में जो उल्लेख मिला है उसमें जैन का, बौद्ध का, पौराणिक ग्रंथ जो विभिन्न संस्कृत
भाषा में भी मिला है, बहुत साक्ष्य इस रूप में भी इतिहासकारों ने इसके एविडेंस के रूप में बताया है। फिर बताया गया है कि पत्थर और स्तंभों पर मिले बहुत सारे प्रमाण है। अशोक के अभिलेख बहुत मतलब इम्पोर्टेंट सोर्स माना गया है, वो सब भी मिला है। ये भी बताया गया था कि अशोक वह पहला सम्राट था जिन्होंने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों पर पॉलिश करके और विभिन्न विभिन्न स्तंभों पर लिखवाए थे। इसके बाद माध्यम से भी प्राप्त हुए हैं। इसमें और भी चर्चा किया जाता है, उसने धम्म का भी प्रचार किया। अब सवाल उठता है कि धम्म के प्रचार में क्या है, तो अशोक के यह अभिलेख के माध्यम था धम्म, और इसी के माध्यम से उसके प्रति यानी बड़ों के प्रति आदर, बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट करना, सेंट के प्रति रिस्पेक्ट करना, ब्राह्मण के प्रति उदारता, सेवकों दासों के प्रति अच्छा व्यवहार, इस सब धर्मों के परंपराओं के रिस्पेक्ट भी इसमें शामिल है, जो धर्म का प्रचार करने में मुख्य भूमिका है। अब हम बात करते हैं इसी का जो टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिंग द एम्पायर, कि साम्राज्य की जो प्रशासकीय स्थिति थी, प्रशासकीय जो कैपेसिटी थी, प्रशासकीय जो क्षमता थी, वो क्षमता क्या था, इस बात पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यह डिस्कशन है कि मौर्य साम्राज्य के जो 5 राजनीतिक केंद्र थे, वह 5 राजनीतिक केंद्र की राजधानी पाटलिपुत्र के रूप में माना गया है। पाटलिपुत्र और उसके जो 4 प्रांतीय केंद्र भी थे, जो प्रांतीय केंद्र की चर्चा हमने आपको किया है, जिसमें क्या है तो तक्षशिला है, उज्जैनी है, तो और तोसली है और स्वर्णागिरी है। इस सब की भी रचना किया गया है, जो कि इनके मतलब सबका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया है कि ये सब भी चीज़ प्राप्त हुए हैं। ये भी कहा गया है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत के अंतर्गत, यानी जो वेस्टर्न साइड का जो प्रोविंस था, यह प्रोविंस आंध्र प्रदेश उड़ीसा से लेकर के आंध्र प्रदेश उड़ीसा और उत्तरांचल तक यह स्थान एक जैसे मतलब उत्कीर्ण किए हुए एक जैसे संदेश के रूप में यह चीज़ प्राप्त हुआ है, जो विशाल प्रशासनिक क्षमताओं की कैपेबिलिटी के रूप में यह शो करता है। अब हम बात करें इसी के रूप में कि सबसे प्रबल यानी सबसे महत्वपूर्ण या सबसे सशक्त जो प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी तथा उसके आसपास के प्रांतीय केंद्रों पर रहा है, यानी जो प्रशासकीय ढांचा बना, वह प्रशासकीय ढांचा यह एक साम्राज्य की राजधानी को नियंत्रण करने के लिए बनाया गया, जो प्रांतीय केंद्रों के आसपास भी रहने का काम करता है। अब बात करते हैं हम कि जो मतलब ट्रेड रूट था, जो ट्रेड रूट खास करके कि हम बात करते हैं कि तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले सबसे महत्वपूर्ण सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट था, और यह ट्रेड रूट मतलब एस्टेब्लिश था। अब हम बात करते हैं स्वर्णागिरी। तो स्वर्णागिरी का क्या तात्पर्य है कि स्वर्णागिरी का मतलब होता है कि सोने के पहाड़ का डायरेक्ट रिलेशन है कर्नाटक से। चूंकि कर्नाटक सोने की खाद्यान्न के लिए सबसे उपयोगी केंद्र था और यह उपयोगी केंद्र खाद्यान्न के रूप में जाने जाते थे, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब हम इसी कड़ी में अब हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, तो इस कड़ी में अब ये ध्यान रखना है कि साम्राज्य के संचालन, अब यही नहीं है, कहता है कि साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदियों दोनों मार्ग का, यानी जिस प्रकार से ट्रेड रूट का इस्तेमाल किया गया, यह ट्रेड रूट का इस्तेमाल किसी एक ही पार्ट के अंतर्गत नहीं है, लैंड पार्ट भी था और रिवराइन भी था। तो ये दोनों मार्ग का आवागमन मतलब काफ़ी आवश्यक था, और इसी आवश्यकता को देख करके राजधानी से प्रांतों तक जाने के लिए कई सप्ताह और महीने समय लग जाते थे। निश्चित तौर पर जब ज़्यादा समय लगेगा, जब ज़्यादा टाइम लगेगा तो उसकी हर प्रकार की व्यवस्था हमको करनी पड़ती है। तो हर प्रकार की व्यवस्था करने के लिए अगर सपोज कीजिए 2 महीना 3 महीना समय लगेगा, तो उसके साथ रहने खाना पीने इस सभी चीज़ का इंतज़ाम साथ में लेकर के जाना पड़ता था,
जो कि यह बात स्पष्ट इतिहासकारों ने मतलब मेंशन किया है। फिर हम बात करते हैं कि मेगास्थनीज की चर्चा करते हैं कि मेगास्थनीज ने सैनिक के गतिविधियों का यानी जो मिलिट्री एक्टिविटी का कंडक्शंस था, यह कंडक्शंस एक समिति और 6 उप समिति के रूप में उल्लेख किया गया है जो इसमें दर्ज है। इसमें यह भी कहा गया है कि जो नौसैनिक का संचालन करता था, यानी कि यह काम नौसैनिक का संचालन करना था। दूसरी यानी सेकेंड जो रूट की बात करें तो सेकेंड रूट की बात क्या है कि दूसरी यातायात और खान पान का संचालन भी करती थी, और तीसरी काम पैदल सैनिकों का होता था। चौथी संचालन अश्वारोही होता था, जो घोड़े के रूप में जो मिलिट्री वेस्ट था, यानी मिलिट्री के जो ट्रूप्स थे वो थे। जो 5 पार्ट था इसका वह रथारोही था, और जो 6 पार्ट था वह हाथियों के माध्यम से संचालन किए जाने वाला सैनिक का यह व्यवस्था था। तो इस प्रकार से बताया गया है कि यह कितना महत्वपूर्ण था, इस चीज़ को जानना जरूरी है। फिर ये भी कहा गया है कि अगला जो हम पढ़े हैं न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप, तो न्यू नोशन ऑफ किंगशिप के बारे में क्या है, इस चीज़ पर भी प्रकाश डालना है कि न्यू नोशन किंगशिप के रूप में न्यू नोशन किंगशिप के रूप में है कि चिफ्स एंड किंग्स इन द साउथ। तो चिफ्स एंड किंग्स इन द साउथ में क्या है कि जो राजा के कार्य है, जो राजा का न्यूली प्रिंसिपल्स है, वो प्रिंसिपल क्या था, यानी राजधर्म का जो सिद्धांत था वो सिद्धांत क्या होता है। तो कहता है कि चिफ्स एंड किंग्स इन द साउथ, कि दक्षिण के राजा और सरदार के बारे में इसमें चर्चा किया गया है, जिसके बारे में हम आपको पढ़ करके बताए हैं कि दक्कन और उसके दक्षिणी के क्षेत्र में स्थित तमिलकम, जो तमिलकम था, तमिलकम दैट मीन्स कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्से यह तमिलकम कंट्री से संबंधित कहे जाते थे, जिसमें चोल, चेर, पांड्य और पांड्य जैसी सरदारियों का उदय हुआ। चूँकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि चिफ्स और किंग्स, ये चिफ्स और किंग्स जानना है कि चिफ्स और किंग्स, किंग्स का राजा हो गया, चिफ्स सरदार के बारे में कहा गया है, तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। फिर है चिफ्स एंड चिफडम, यानी सरदार और सरदारी, तो ये जानना है कि सरदारियों का उदय हुआ। ये राज्य बहुत ही समृद्ध और अस्थायी मतलब रूप से सिद्ध हुआ, यह इतिहासकार इस चीज़ को बताता है। हम बात करते हैं इसमें कि कैसे आगे की ओर बढ़ा गया है, तो इसमें बताया गया कि कई सरदार, कहा गया है कि कई सरदार राजा लंबी दूरी के व्यापार और राजस्व जुटाने का काम करते थे। किसी भी राजा के लिए रेवेन्यू प्राप्त करना है सबसे बड़ी चैलेंज होता है, तो रेवेन्यू जुटाने के लिए सारे प्रयास किया जाता था। जो मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर शासन करने वाले सातवाहन लगभग हम बात कर सकते हैं कि सेकेंड सेंचुरी टू सेकेंड सेंचुरी BCE, यानी कह सकते हैं कि द्वितीय शताब्दी से लेकर द्वितीय शताब्दी ईस्वी तक, और जो पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले जितने भी एशियाई मूल के शक शासन शामिल थे इसमें, यानी पश्चिम और पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले जो मध्य एशियाई मूल के थे, जिसमें शक शासन का नाम शामिल है। तो ये चीज़ हम कह सकते हैं। हम बात कर सकते हैं सातवाहन के बारे में, जो हम नेक्स्ट अध्याय में पढ़ेंगे इन डिटेल सातवाहन के बारे में। उसमें कहता है कि सामाजिक ऊंचे अस्तित्व का दावा विभिन्न प्रकार से किया गया है, इसके बारे में यह चीज़ भी बताया गया है। तो अब हम बात करते हैं, अब हम बात क्या करते हैं कि इसमें एक है कि डिवाइन किंग्स के बारे में हम लोग पढ़े हैं। डिवाइन किंग्स के बारे में क्या पढ़े हैं, इस चीज़ को पहले अभी हम लोग जान जाएं कि दैविक क्या होता है। डिटीज का नाम हम सुने हैं, तो डिटीज क्या है, दैविक है। दैविक राजा क्या होते थे, दैविक राजा का जो मूल रूप होता था उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हम इसको पढ़े हैं, आपको मैं बता दूं कि राजाओं की जो उच्च स्थिति यानी हाई पोजीशन अचीव करने की जो कैपेबिलिटी होती है, यह प्राप्त करने का जो साधन है, यही साधन जो देवी देवता होते हैं जिसको हम डिटीज बोलते हैं, इसके साथ जुड़ना
मतलब इसके साथ जुड़ना था, उस बात को यह स्पष्ट करता है। खास करके यह क्या बताता है कि मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले जो कुषाण शासक थे, वह लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक यह खास करके कुषाण के इतिहासों की रचना का उल्लेख साहित्य परंपरा के माध्यम से की गई है, जो कि इसके बारे में स्पष्ट जानकारी मिलती है, जो लगभग एक पहली शताब्दी से लेकर प्रथम शताब्दी ईस्वी तक का इसमें सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है इतिहासकारों के द्वारा। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जो मथुरा के पास तट है, वह एक देव स्थान पर कुषाण शासकों की काफ़ी लार्जेस्ट और जिसको हम विशाल कहते हैं, विशालकाय मूर्ति लगाई गई थी, और यह विशालकाय जो मूर्ति थी वह यह स्पष्ट इसमें वर्णित करता है। चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व में गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्य के साक्ष्य एविडेंस प्राप्त हुए हैं, जो एविडेंस इसके साथ मिलते हैं। फिर ये भी कहा जाता है कि जो सामंत शक्तिशाली होते थे वह राजा भी बन जाते थे, जो सामंत शक्तिशाली होते थे वो राजा भी बन जाते थे, और जो राजा दुर्बल होते थे वो बड़े शासक के अधीन हो जाते थे। जो राजा कमजोर पड़ जाते थे वह क्या हो जाते थे, बड़े शासकों के अधीन हो जाते थे। गुप्त शासकों का इतिहास, साहित्य, सिक्के, अभिलेख, ये सब जितने भी है सब उसी की सहायता से लिखा गया है, जैसा कि इसमें स्पष्ट वर्णन है। ये भी कहा जाता है कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो इलाहाबाद में आप जो स्तंभ का अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, उसकी रचना हरिसेन, जो स्वयं गुप्त सम्राटों के संभवतः जो सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे, उन्होंने संस्कृत भाषा में इसका अनुवाद किया था। तो आज हम लोग मतलब टॉपिक 4 तक मतलब पढ़े हैं। इसमें हम एक चीज़ और आपको बता दें कि चीफ्स और चीफडम, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना जरूरी है, चीफ और चीफडम के बारे में। तो चीफ और चीफडम क्या है, यानी सरदार और सरदारी, इस चीज़ को जान लेना जरूरी है। इसमें हम पढ़े थे कि अ चीफ इज ए पावर मैन हुज पोजीशन में और मे नॉट बी हेरिडिटरी, यानी ये कह रहा है कि सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था, सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था जिसका पद वंशानुगत नहीं होता था, यानी हेरिडिटरी के आधार पर नहीं हो सकता था, यानी होता भी था या नहीं होता था, लेकिन ये बताया कि उसके समर्थक उसके खानदान के लोग होते थे, जो सरदार के कार्यों की विशेष अनुष्ठान का संचालन करता था, युद्ध के समय नेतृत्व करता था, विवादों को सुलझाने में उसका प्रयोग करता था, और उसकी मीडिएशंस भी करने का काम करता था, जैसा कि इस बारे में स्पष्ट करता है। तो आज टॉपिक 3 और 4 को हमने इन डिटेल किया है। इसी के साथ आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। आप खुश रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ